Madam Principal, my dear colleagues, other members of staff, when you joined 4 years back, I must admit I was scared of the terrain of this place. And I felt that I took the right decision to join here. But definitely I didn't have any option. Once I had opted to join here, I had to join here. But with hindsight, I would say, difficult station, but what a difficult station just like this. And it isn't such a bad place after all, if I had been able to spend 4 years here. And I would want to enumerate how each one of you have helped and supported me, because when one is working at an institution, you definitely need the support and help of each and every one. And I'm going to miss the pleasant weather of this place. When I go back to UP, I'll be going back to a place which is full of heat and dust. So that is definitely one of the things that I'm going to miss. And I'm also happy for the last 2 years I have been able to give a good result. But a lot of credit should be given to Corona too, because it helped. And that was one of the reasons why the result was so good. But I must also mention this fact, though I didn't want to run to the Northwest, in a way it was good for me. The reason being that when you are working in a Hindi belt, to teach a subject like English is very difficult. So I have to just find my way back to UP. There I might face this problem, where I may not be able to give the kind of result that I have been able to give here. And that's all. And then of course I must mention that having an English teacher as a principal definitely helped. As a teacher for me, because whatever contributions principal has made in teaching the students, she used to take the classes, and that also helped the students to perform the way they perform. And I don't wish to take the names of all of you or how each one of you helped you, because there are not just one or two instances. When I have been helped, I have received the help and support throughout my stay here. Thank you for everything. अपने 4 साल के सफ़र को 5 मिनट में कह पाना तो बहुत कठिन है, लेकिन मैं इस बात को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता हूँ कि इस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बहुत कुछ सिखाया कि किस तरह से अपने एकेडमिक्स को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से नवोदय विद्यालय का जो कल्चर होता है, ये मुझे सीखने को मिला इस विद्यालय से। ये मुझे सीखने को मिला कि आखिरकार अपने बड़े भाइयों और बड़ी बहनों से हम क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं, जिससे हमें अपने जीवन में नई चीज़ें और नई उमंग के साथ हम अपने कार्य को कर सकें। और शायद ही अब दोबारा अपने करियर में मैं ये दोबारा इस चीज़ को देख पाऊंगा कि इस तरह की प्रिंसिपल मैम या फिर इस तरह का कोऑर्डिनेशन वाला स्टाफ या फिर जगह जगह पे छोटे भाई की तरह ट्रीट करने वाले हमारे बड़े भाई लोग और हमारी बड़ी बहनें और कुछ ऐसे दोस्त जिन्होंने क्या कहें, मतलब ये वो टाइम है कि समय को काटना बहुत मुश्किल था कि जब ट्रांसफर हो गया अब ये लग रहा था नहीं अब चले जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अब आ रहा है कब आ रहा है यही चल रहा था बहुत दिनों से, लेकिन फाइनली ट्रांसफ़र ऑर्डर भी आने शुरू हो गए और आज वो दिन है कि जो 4 साल का सफ़र जो था वो कल शायद खत्म होने की कगार पे है। और पहली ज्वाइनिंग का इससे ज़्यादा अच्छा स्कूल मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी दोबारा ज्वाइनिंग के उसमें मिलेगा। अगर मैं नवोदय में नौकरी करता रहता हूँ आगे तब भी मुझे इस तरह की प्रिंसिपल मैडम नहीं मिलेंगी जिन्होंने एक नए न्यू रिक्रूटमेंट के लिए
जो एक समय मिलना चाहिए स्कूल में, या फिर जो कोऑर्डिनेशन मिलना चाहिए, जो लोग पहले चले गए हैं स्टाफ में, वो सारे लोग भी, और जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो सब लोग भी, चाहे वो ऑफिस स्टाफ हो या लालू दीदी हो या फिर रेखा भाभी हो या कोई भी मेस का स्टाफ हो, कैटरिंग सर हो, या जितने लोग भी A to Z अगर वो एम्प्लॉई हैं तो उन्होंने मेरी सर्विस को पूरा कराने में कहीं ना कोई छोटा मोटा योगदान दिया है, और वो वाकई में बहुत ही सराहनीय था, ताकि मैं अपनी जीवन के इस पड़ाव को मैं पार कर सका। और इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सब लोगों का कि आप सभी लोगों ने मुझे एक नवोदय के कल्चर को सीखने का समय मिला, ताकि मैं अपने जहाँ पे भी जिस प्लेस में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मैं अपने आप को थोड़ा सा और अच्छे से प्रेजेंट कर सकूँ। और स्पेशली पांडे सर के आने के बाद से बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला, और शायद कुछ बातचीत करने के तरीकों में भी परिवर्तन आ गया है, और इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा जीवन में। इस कैरेक्टर को और इस व्यक्तित्व को मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ अपनी लाइफ में। थैंक यू आप सभी का, मेरी कठिन सफर का आसान है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। सिक्किम आने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा कि भारत देश के अंदर भी ऐसी कोई जगह है, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं तो हमने ये सोचा कि सारी दुनिया ही ऐसी जैसे हम रहते हैं जहाँ पर रहते हैं, लेकिन नवोदय का बहुत बहुत धन्यवाद जो सिक्किम देखने का मौका मिला हमको। और वास्तव में सिक्किम इंडिया का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी जगह है। हम लोग सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर ये वो, लेकिन सिक्किम इज रियली ए गुड स्टेट इन इंडिया, एंड आल्सो पीपल्स आर आल्सो गुड ऑफ सिक्किम। इसके बाद यहाँ का जो परिवार नवोदय परिवार है इसको हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रहेगा। बहुत कुछ यहाँ सीखा, बहुत कुछ सीखना भी बाकी है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एक ट्रेनिंग सेंटर से जा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि हम यहाँ से ट्रांसफर पे जा रहे हैं, लग रहा है कि हमने यहाँ ट्रेनिंग किया है, कैसे काम करना है आगे हमको। तो यहाँ जो कुछ हमने सीखा है उसको हम आगे ग्राउंड में लेंगे। आदरणीय प्राचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक और विद्यालय विभाग के समस्त कर्मचारी, आप सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी अपनी अपनी चॉइस के अनुसार अपने गृह राज्य में जा रहे हैं, इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। यहाँ लगभग 4 साल की सेवा मेरी पूर्ण हुई है, और इस 4 साल के कार्यकाल के दौरान सबसे पहले मैं जब सिक्किम में आया तो अध्यापक क्षेत्र में मेरा ये पहला कदम था, क्योंकि इससे पूर्व इस क्षेत्र में मेरा कोई अनुभव नहीं था। हाँ, कंप्यूटर के क्षेत्र में थोड़ा बहुत योगदान रहा था, और गांव में ही जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं, ग्राम पंचायत में ही मैं अपनी सेवा दे रहा था, और वहां से मैं यहाँ पर आया। यहाँ आने के दौरान जो कुछ मैंने सीखा वो सब आप लोगों की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे सीखने में आप सभी का योगदान रहा। विशेष रूप से प्राचार्य महोदय जिन्होंने इस दौरान मुझे काफी अवसर प्रदान किए, और इन अवसरों के दौरान मैंने अपने कार्य को सफलतापूर्वक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ जगह मेरी कमियां भी रही, चाहे वो अनुभव की कमी हो या मेरी लापरवाही कह सकते हो, लेकिन आप सभी के सहयोग और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप लोगों ने मुझे कार्य करने के लिए प्रेरित किया,
शुभकामनाएं। और बाकी हमारे विद्यालय के कुछ कर्मचारीगण जिनका शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण अध्यापन के क्षेत्र में तो विशेष योगदान नहीं, लेकिन इस विद्यालय परिवार में बहुत योगदान रहा, जिसमें विशेष रूप से राजू भैया है, नरेंद्र गुरु भैया है और बाकी हमारे मैम वगैरह, तो इनका भी काफी सहयोग रहा। जहाँ कहीं भी मुझे आवश्यकता महसूस हुई और मैंने जैसे ही इनसे चर्चा की, मेरा काम इन्होंने सबसे पहले किया है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शिक्षकगण एवं साथियों, पाँच मिनट का समय अगर मिश्रा जी देखें तो शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सभी लोगों को एक एक अध्याय बना करके मैं आपके ऊपर एक पुस्तक लिखूंगा तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत कम होगा। मैं आप लोगों के उपकार, आपका सहयोग शायद शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये समय जो मिश्रा जी दे रहे हैं 5 मिनट का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। राजू भैया, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक जब मैं आया तो बिल्कुल अजनबी की तरह यहाँ पे था। आप और आपकी टीम ने जो सहयोग मुझे दिया, मतलब आपके काम के अलावा जो आपका काम है वो आपको करना है, लेकिन उसके अलावा जो आपने मुझे जो सहयोग दिया उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। और हमेशा आपको अपने जीवन में मैं याद रखूँगा कि आपने मुझे कम से कम ऐसा माहौल दिया कि मैं अपने आप को यहाँ पे स्थापित कर सकूँ। नहीं तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब हम किसी अजनबी जगह पर जाते हैं तो अपने आप को वहाँ पे स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद जो मैं ऑफिस की अगर बात करूँ तो वैसा वैसे कहा कि बहुत कम बोलने की जो आदत है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कम बोलता हूँ जैसा लेकिन इतना जरूर है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे शब्दों से आप में से किसी को भी कभी कोई दुख नहीं हो। और हमेशा मैंने इस चीज़ की, चाहे वो किसी भी स्तर का कर्मचारी हो, मेरे से अधीनस्थ हो या वरिष्ठ हो, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे शब्दों के माध्यम से किसी को कभी कोई आघात न पहुंचे। लेकिन जैसा कि हमारे पांडे सर ने बताया कि इंसान गलतियों का पुतला है, तो हो सकता है कि कुछ गलतियां जरूर हुई होगी, और तो आप लोग उनको अपने आप से भुला देना। प्रिंसिपल मैडम के बारे में मैं जितना गर्व करूंगा बहुत कम होगा। एक जो सम्मान और इनका जो सहयोग मुझे मिला, आज आप सिर्फ एक शब्द में ये कहूँगा कि आज जो मैं हूँ यहाँ पर स्थापित हूँ, जिस पोजीशन पे मैं हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ जैसा भी हूँ, मैं मैडम आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं आप ही की वजह से यहाँ पे इस पोजीशन में हूँ। आपने जैसे ये जो जयंती है वो मेरे प्रारंभिक स्कूल की तरह रहा है। एक बच्चे मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं आया, जैसा आज सर ने कहा था कि सर अपना कुछ लिखिए, तो मैंने लिखा भी था उसमें कि मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं आया। सच में ये था कि मैं यहाँ पे सीखने के लिए आया हूँ और यू आर माई फर्स्ट टीचर मैम। आप मतलब ये है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है और हालांकि मैं परिपूर्ण नहीं हुआ हूँ, मुझे बहुत सीखना है, लेकिन इतना है कि मैं अपने कार्य को अपने तरीके से कर पाऊंगा, इतना मैंने आपसे सीख लिया है और ये उपकार मैं आपका जीवन भर याद रखूंगा। और बाकी सभी जो मेरे साथी हैं, शायद कोई ऐसा आदमी होगा जिसने मेरी कभी मदद नहीं की हो या जो हमेशा मेरे लिए तैयार नहीं रहा हो। अध्यापक हो या मेरे कर्मचारी हो, सभी लोग जो है हमेशा मेरी मदद करने के लिए आप लोग तैयार रहे हैं।
धन्यवाद आप लोगों को दूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन आप लोगों का उपकार मैं याद रखूँगा। मतलब भले मैं इतिहास का अध्यापक हूँ, आपकी यादों में कभी इतिहास नहीं बनने दूँगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। गुड आफ्टरनून सभी को। नाइस। मैं तो यहाँ पे 30 मार्च 2018 को ज्वाइन किया और जब रिजल्ट आया तो मैं अपने घर में नहीं बताया कि मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ। हालांकि मेरे फादर प्रोफेशन से टीचर ही हैं, तो वो चाहते थे कम से कम मैं हायर एजुकेशन में जाऊँ। जब रिजल्ट आया ठीक उसी समय मैं नेट क्वालिफाई किया और मेरा PhD में एडमिशन भी हुआ था। तो मेरे गाइड भी यही चाहते थे कि मैं यहाँ पे आऊँ, वो कहते थे कहीं ना कहीं तुम्हारा हो जाएगा, प्रयास करो। और बाद में वो मुझे ये डराया कि अगर तुम जा रहे हो नागालैंड पहुँच जाओगे तो पकड़ के मेरी शादी कर तो बड़ा अजीब स्थिति था। मैं घर नहीं बता रहा था कि पहले तो मैं अपने गाइड से बताया, उन्होंने ऐसा कहा, मैं घर नहीं बताया, सोचा कि चुपचाप रहूँगा, बताऊँगा नहीं कि रिजल्ट आया है और मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन फिर मुझे लगा मेरा जो रूम पार्टनर था वो भी बठिंडा में PGT इकोनॉमिक्स है, 2 साल का रहता है, दोनों का साइंस सिलेक्शन हुआ। वो कहा चल के देखते हैं। और जब आए तो ज्वाइनिंग लेटर भी मिला तो सिक्किम, और हमारे यहाँ क्या है कि सिक्किम को लोग चाइना मानते हैं। लेकिन जुबेर सर ने कहा कि आपका स्कूल रिसोर्ट जैसे जाके देखिए। तो खैर को 20-25 दिन का समय नहीं मिला, क्योंकि वहाँ से मैं फिर चला गया था। और वहाँ से जब मैं सोच रहा था जाऊँ ना जाऊँ, फिर एक मैडम को मैंने फ़ोन किया, तो मैडम ने कहा कि आपकी तरफ के बस्ती के एक लोग हैं, अनूप सर का नाम बताया, नंबर भी दिया। बात हुई तब थोड़ा मुझे लगा कि चलिए वहाँ भी लोग हमारे तरफ के हैं और आए। मैं इसके बारे में टीचिंग नहीं किया था, मुझे कोई अनुभव नहीं था। एक तरह से मेरे जो प्रोफेशनल लाइफ उसकी शुरुआत भी इसी स्कूल से हुई। ये मेरी कर्मभूमि है, सिक्किम मैं कहता हूँ, जहाँ से मैंने इस चीज़ की शुरुआत की। मुझे नवोदय कल्चर में पता है किस तरह की ड्यूटी होती है, किस तरह से किया जाता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया और अप्रैल 1 महीने तक रहा, मैं चला गया, 2 महीने बाद आया, तब स्कूल पूरे फ्लो में चलने लगा। तो लगा कि नवोदय का एक सिस्टम अलग होता है, लेकिन धीरे धीरे काम करने पर आज ये लगता है कि नहीं, इसके लिए हमारा करना चाहिए और सभी का सहयोग समय समय पर मिलता रहा। जितने भी लोग हैं, लैंग्वेज की समस्या थी तो लैंग्वेज डिपार्टमेंट हमको जरूर हेल्प करता था, कुछ लिखवाता है तो लैंग्वेज डिपार्टमेंट के पास जाता था। कभी किसी ने नहीं मना किया, चाहे स्पर्शा मैडम, प्रमिता मैडम से कहा, चाहे तैयब सर से कहा, जब जो मिल गए। और धीरे धीरे मैंने जो है सीखना शुरू किया कि जो भी 3.5 साल का समय मैंने सीखने की कोशिश की जहाँ तक संभव था। और सबसे ज़्यादा योगदान मैडम का था कि पहले साल ही मेरे साथ एक कहा है कि दुर्घटना हो गई अपनी गलती है। 2019 में गए 5 बच्चे फेल हो गए और मुझे अपने को प्रूव करना था कि कैसे 100% रिजल्ट आए। लेकिन ठीक है, 2020 में ये अवसर मिला। मैडम का लगातार सहयोग था और मैं मैडम को एक माँ के रूप में देखता हूँ, जिन्होंने हर तरह से जो है सहयोग किया। जब जरूरत हुई, पहले इंस्पेक्शन था, उसी समय मेरा एंगेजमेंट था और मुझे लगा कि एंगेजमेंट जो है अब आगे करना पड़ेगा। हर फोन किया तो घर लोग कहे कि अब कोई डेट नहीं है, शुभ कोई मुहूर्त नहीं है, फिर शादी अगले साल होगी। तो मैं कहा कि मेरा पहले इंस्पेक्शन है, हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैडम से कहे, लेकिन मैडम से जैसे कहा मैडम ने कहा ओके यू कैन गो। तो मैं घर बताया तो मेरे फादर कहते थे, मेरे फादर भी प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं, टीचर थे। उनकी बहुत इच्छा थी एक बार मैडम से मिले, क्योंकि वो कहते थे कि प्रिंसिपल और टीचर का संबंध बहुत अच्छा लगता नहीं। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि मिले, वो कहे कि चले, लेकिन कोविड के कारण उनकी
को धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ सीखा है यहीं से सीखा। मैं इस सिक्किम को और इस नाथ सिक्किम को अपना जो है मदर